Okay. Hello, Gungun. Welcome. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? Fine, ma'am. Okay. Gungun, introduce yourself. Okay, so this is your first class of sociology? Second. Okay, second class. Okay, very good. Okay. Okay. Hello, Yashika. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Hello, Yashika. How are you? Hello, ma'am. I'm fine. What about you? I'm good as well. Okay, so we are introducing with a new chapter today. And this chapter is Social Institutions of a Sociology book, in which we'll be reading about different kinds of institutions that exist in the society and how they help in the functioning of the society. अब आप मुझे ये बताओ कि आप पहले से इस word से familiar हो, इस term से, social institution से? Any one of you? Yes. Can you tell me anything that you know about social institutions? What are social institutions? Social institutions are like institutions, societal institution in which all public is allowed to go. For example, any examples of social institutions that exist in our society? Like temples or hospitals and all. Schools? Okay. So basically, you are not talking about social institutions, but you are talking about public places. Sir, 1126. So, like hospitals or any temples you are talking about, these are public places where everyone is allowed. Social institutions are those that form the foundation of the society. जिन basis पे या जिन grounds पे हमारी society बनी हुई है. अब अलग-अलग तरीके के social institutions exist करते हैं हमारी society के अंदर. ठीक है? अगर मैं in general बात करूं तो ये दो वर्ड से बना है. Social means society, institution means वो foundations जिनसे society बनी है. अब आप बताओ कि ऐसी कौन कौन सी फाउंडेशंस हो सकती हैं जिनसे सोसाइटी बनी है, जिनके बिना ये सोसाइटी वर्क नहीं कर पाएगी, कोलैप्स हो जाएगा. सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है, इट विल कोलैप्स. Religion? Oh yes, very good. What else? थोड़ा प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस पे आओ जो आपके बहुत क्लोज हैं. आई एम गिविंग यू द हिंट. Yes? Family? Yes, Family, very good. kin. Family. What else? Kinship? Yes, very good. Kinship and Peer group. peer group. Your caste
एनसीईआरटी Yes. से देख देख के बोल रहे हो ना, खोल रखी है ना सामने, लगा No, था No, ma'am. ma'am. एनसीईआरटी खोल रखी है मैंने। No, ma'am. पक्का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर तो तुम होशियार हो, मतलब पहले से आता है Yes, तुम्हें। ma'am. तो ये इट थोड़ी वाज सी। लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। ठीक है, ओके, वी आर वेटिंग फॉर 5 more minutes, let other people also join and then we'll start. Okay, Okay. Okay, ma'am. okay, hello Kunjika, Good afternoon, ma'am. good afternoon, how are you? Ma'am, I'm fine. How are you? I'm good as well. Okay, so Kunjika, we are beginning with a new chapter of sociology, that is social institutions. So I have given them a brief outline of what are institutions. So can you tell me what are institutions, social institutions? Ma'am, social institutions basically that help people who are needy. Okay, like you mean welfare societies. Yeah, because it's social. The word social is there, so it So basically the means word social prescribes welfare of the people. society, मतलब society का कोई part होते होंगे ये, but Yes. what are those institutions? आप बहुत broader perspective में जा रहे हो, थोड़ा Like orphanages and अपने stuff. आप से relate करके बोलो। Orphanages. You are talking about the kinds of welfare societies that help for the welfare of the people. We are talking about broad-based institutions on which जिन पे ये society टिकी है, जिनके बिना ये society का जो framework है वो collapse हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से institutions जो exist करते हैं society में, जिनके बिना आप अपने personal basis पे सोचो कि आप survive नहीं कर सकते, जिनके बिना। Ma'am, schools, medical institutions. First and foremost, your family. सबसे basic social institution, that is your family. Can you survive without your family? No, ma'am. And your family provides you your caste. So you are identified in the society by what? Your My caste. family. Yes, your family, your caste. These are your identifiers in this society, जिनसे आपको जाना जाते कि अच्छा ये पर्सन, अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन उस फैमिली का बंदा है, या ये उनकी बच्ची है, या ये उनका बेटा है। ठीक है, सो दीज आर लाइक आवर इंस्टीट्यूशंस, जैसे फैमिली हो गया, कास्ट हो गया, किनशिप, हमारे भाई बहन हमें और किन से जानते हैं, अच्छा ये उनकी बहन है, ये उनका भाई है, अच्छा ठीक है। सो दीज आर आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिनके बेसिस पे हमें रिकग्निशन मिले और जिनके बिना ये सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि ये सोसाइटी किस पे टिकी है? इस सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। सो आज हम जो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, कास्ट। हमारा जो फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट इज कास्ट। अब आप बताओ कि कास्ट, हाउ इट एक्ट्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, हु विल टेल कि कास्ट के बेसिस पे कास्ट का सोसाइटी में बेसिकली क्या रोल होता है, या एक पर्सन की लाइफ में क्या रोल होता है कास्ट का? मैम जिसकी सोसाइटी की वन बाय वन, आई कांट रिकॉग्नाइज योर वॉइसेस। 11:26। अच्छा हाँ, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के? तो ये टेम्परेरी सेटअप है। कुंजिका, लवन्या, आई थिंक एवरीवन ऑफ यू हैज जॉइंड। खुशी राणा कौन कौन है, और युक्ति है, मान्या गुप्ता है, न्यू स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं, यशिका है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेम्परेरी सेटअप। नॉर्मली हमारी ये डिजिटल बोर्ड पे जो क्लासेस होती हैं वो फेस टू फेस होती है। आई एम श्योर ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड विद अस फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, वो जानते हैं, बट अभी थोड़ा गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए इट्स अ टेम्परेरी सेटअप। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है इट्स अ टेम्परेरी थिंग, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जितनी प्रीमियम क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकें वो प्रोवाइड करें। तो यार जो भी तुम्हें वॉइसेस, मतलब तुम्हें आंसर्स तुम्हें देने ही है,
तुम बोल सकते हो और उसको हम recognize करके we can revert back and हम two-way communication रखेंगे. This is not going to be that online class कि हमने बोल दिया और बस तुम सुनते जा रहे हो, waste हो रहा है पूरा session. Second thing I want to tell you, by 15th or 16th April we are going to resume back to our face-to-face classes. Second and third thing I want to tell you, अगर ये meeting खत्म हो जाती है, अभी वो pro version नहीं है Zoom का अपने पास, ले लेंगे अगर ज्यादा long term तक हमारा Zoom चला. अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है उसी पे आप दोबारा ज्वाइन कर लेना. मैम विल बी टीचिंग यू, इट विल बी अराउंड 1 hour 15 minute सेशन सोशियोलॉजी का. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज गोकुल छाबड़ा. बाकी सब ऑलमोस्ट जानते हैं जो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो न्यू मैम बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो उसी बेसिस से लेके चलना. सोशियोलॉजी का आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट हुआ था उसमें सबने बवाल मचा दिया. द नंबर मैम बताएंगे उसमें ज्यादा क्या है, बट मतलब we teachers are really happy for all the performance that you have portrayed. Thank you तो बोल दो, thank you बोल दो भाई, थोड़ा thank you बोल दो कि वो पॉलिटिकल साइंस में तारीफ करिए थोड़ा. Okay, resuming back to our session. हाँ, हम बात कर रहे थे कास्ट की. ठीक है, तो कास्ट एक टाइप का सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया जिसके बेस पे हमारी जो सोसाइटी है हमें रिकॉग्नाइज करती है, या फिर हम एक मेंबर बनते हैं इस सोसाइटी के, किसके बेसिस पे, हमारी कास्ट के बेसिस पे हमें क्या मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिल जाता है सोसाइटी में कि अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये इस फैमिली का मेंबर है, इस फैमिली का पार्ट है. तो आप क्या बन जाते हो, इस होल सोसाइटी के पार्ट बन जाते हो, क्योंकि आपको क्या मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है अपने फैमिली नेम से और अपने कास्ट के बेसिस पे आइडेंटिटी मिल जाती है. यस, रिपीट प्लीज, इसमें वॉइस थोड़ी कट हो रही है. आइडेंटिटी मिलती है. शी इज राइट. हमें क्या मिल जाती है, हमारी फैमिली हमें एक आइडेंटिटी दे देती है, हमारी कास्ट हमें एक आइडेंटिटी दे देती है, जो कि जिसके थ्रू जो बाकी लोग हैं वो हमको पहचान पाए. सेकंड इज, जो दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन हम डिस्कस करेंगे वो है ट्राइब, कि आप कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हो. ठीक है, वो भी बेसिकली आपका बैकग्राउंड की तरह है कि आप कौन सी ट्राइब से आते हो, कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो. एंड द अदर इज फैमिली एंड किनशिप. और जो दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, हमारी फैमिली और हमारे किन्स. व्हाट आर आवर किन्स? किन्स कौन होते हैं हमारे? व्हाट इज ब्लड रिलेशनशिप्स. सॉरी, ब्लड रिलेशन. yes, very good. The people who are related to us through blood relationship, like our mother, father, our brother, sister, तो उनको उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, किनशिप. सो अब हम स्टार्ट करते हैं लिटरल डेफिनेशन से कास्ट की. अगर मैं बात करूं कास्ट वर्ड की, तो ये पोर्टुगीज वर्ड से आया है, जिसका जो पोर्टुगीज वर्ड है कास्टा, जिसका रियल मीनिंग क्या है, प्योर ब्रीड. क्या मीनिंग है, रिपीट. प्योर ब्रीड. प्योर ब्रीड. तो ये कौन से वर्ड से आया है, पोर्टुगीज वर्ड कास्टा. किससे? पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से आया है. ठीक है, अब अगर बाकी दूसरा इसका मीनिंग जानने की हम कोशिश करें, इसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी ऑफ पीपल भी कह सकते हैं हम कास्ट को, कि ये बहुत सारे लोगों की एक जॉइंट कम्युनिटी है. हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, जाति. हम हिंदी में कास्ट को जनरली हम एक दूसरे से बोल देते हैं, अब तो इतना नहीं यूज होता है, बट पहले टाइम में जो कास्ट है उसको, अब कास्ट तो एक बहुत ही न्यू टर्म है जो अब विद टाइम इवॉल्व हुई है. पहले कास्ट नहीं बोलते थे, पहले बोला जाता था जाति. या फिर आज भी जो हमारे विलेजेस हैं उनमें ये जाति टर्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. यही पूछते हैं जनरली लोग, ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति का है. अब जो गांव के या विलेज पीपल है उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता कि कास्ट भी बोलते हैं इसको. कास्ट तो अब इट इज अ मोर अर्बनाइज्ड टर्म, मोर मॉडर्न टर्म, जो कि अब जिसने जाति को रिप्लेस कर दिया है. अब अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट और वर्ण में क्या डिस्टिंक्शन है, मतलब क्या डिफरेंस है, वर्ण क्या होता है. किसी ने ये पहले टर्म सुनी है, वर्ण? इट्स अ हिंदी टर्म. यस, वो जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रास आते थे. यस, तो ये एक डिवीजन है. अब अगर हम बात करें कास्ट,
तो ये बहुत ही क्लोज सिस्टम है, बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम है, इतना ब्रॉड डोमेन नहीं है कास्ट का, ठीक है। लेकिन जो वर्ण है वो ज्यादा ओपन सिस्टम है, इसमें काफी कुछ इंक्लूडेड होता है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू कास्ट। सेकंड, जो कास्ट है ये पोस्ट वैदिक पीरियड में आई थी, और वर्ण वैदिक पीरियड में यूज किया जाता था। वैदिक पीरियड के टाइम पे, यानी कि वैदिक पीरियड कौन सा, जब हमारे सारे वेद लिखे गए, जैसे हमने पढ़ा कि पहले वर्ण यूज होता था, वर्ण टर्म यूज होती थी, लेकिन वैदिक पीरियड के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में जो न्यू इवॉल्व टर्म आई वो कौन सी थी? कौन सी थी? कास्ट। कास्ट, यस। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं, यानी कि सब डिविजन्स और सब डिविजन्स हैं, यानी कि कास्ट बहुत सारी हैं। कास्ट के अंदर न्यू कास्ट, उनके अंदर और कास्ट, यानी कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी कि कास्ट की सब कास्ट होती हैं, फिर उन सब कास्ट के सब कास्ट भी देखी गई हैं। तो इन ऑल 3000 कास्ट एग्जिस्ट करती है हमारी इंडियन सोसाइटी में। कैन यू बिलीव दैट कि कितनी सारी? अब हमें 3000 के 3000 तो आई एम श्योर किसी को भी नहीं पता होंगी, बट हमारे जो सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसके थ्रू ये जाना गया है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में लगभग 3000 कास्ट एग्जिस्ट करती है, सब कास्ट को इंक्लूड करके। और वर्ण कितने हैं? 4 हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम इन कास्ट में सरनेम्स भी इंक्लूडेड होते हैं? कास्ट में सरनेम्स? सरनेम्स, सी इफ वी टॉक अबाउट सरनेम्स तो स्पेसिफिकली गोत्र होते हैं, गोत्र से भी कोई अपना सरनेम लगा लेता है, ठीक है। लेकिन कास्ट में सरनेम्स इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो ये और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बन जाएगा। कास्ट में सरनेम्स इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि कास्ट में सरनेम्स में गोत्र भी आते हैं। कुछ लोग अपना, अब कुछ लोग तो डायरेक्ट अपनी कास्ट को ही अपना एज अ सरनेम यूज कर लेते हैं, बट कुछ लोग अपना गोत्र भी यूज करते हैं, so it is not included in this domain of caste. अब अगर कास्ट की बात करें तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, नोट डाउन कर लेना। कास्ट में सोशल मोबिलिटी नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट दैट कास्ट डज नॉट अलाउ सोशल मोबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशल मोबिलिटी? Caste cannot be changed. यस, वेरी गुड। कास्ट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपका जो भी सोशल स्टेटस है, मोबिलिटी मींस एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर कास्ट की बात हो तो कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हुआ हूँ, मुझे तो नहीं है पसंद, मैं तो दूसरे में जा रहा हूँ। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। व्हाट इज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ? ये आपके बुक में कहीं टर्म नहीं है, यस। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ किसे कहते हैं? जो कि हमें बर्थ से ही मिला हो। हाँ, यस, वेरी गुड। देखो, अब हम किस कास्ट में पैदा होंगे, किस फैमिली में, किस फैमिली का पार्ट बनेंगे, ये हम पहले से तो प्री डिसाइडेड, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है? ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। कि आप एक बार जिस पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर बन गए, आप उसको डिसओन नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो अपनी कास्ट से दूर भागने की। लेकिन आपके ये जो सोसाइटी है आपको किससे रिकॉग्नाइज करेगी? आपकी फैमिली के नेम से ही रिकॉग्नाइज करेगी कि अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन उस कास्ट का या उस ट्राइब का या उस फैमिली का पार्ट था। सिमिलरली अगर हम वर्ण की बात करें तो इसमें सोशल मोबिलिटी हो सकती है, लोग अपना स्टेटस चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है? बहुत ज्यादा रिजिड है। ये इसका बहुत अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ गया कास्ट सिस्टम का, दैट इट इज वेरी रिजिड। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? नॉट फ्लेक्सिबल। वेरी गुड। हाँ, Very strict with its norms. यस, वेरी स्ट्रिक्ट विद इट्स नॉर्म्स। अभी आप लोग कलेक्टिवली आंसर कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन किसकी वॉइस है ये। So first speak your name and then give your answer, okay? ताकि मुझे पता चले that this particular person is answering, ठीक है? Ma'am, it was Kunjika. Okay, okay कुंजिका, very good. तो यानी कि जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज्यादा रिजिड है, यानी कि इसमें मोबिलिटी अलाउड नहीं है। कोई पर्सन चाह के भी अपनी कास्ट को कभी चेंज नहीं कर सकता, उसको डिसओन नहीं कर सकता, ठीक है?
लेकिन जो वर्ण सिस्टम है वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता। अब अगर हम बात करें, यस बट रिलीजन तो कन्वर्जन हो जाते हैं, रिलीजन Yes, कन्वर्जन yes. हाँ, इनफैक्ट लोग रिलीजन तो अपना कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वो तो रिलीजियस बिलीव्स पे बेस्ड होता है, लेकिन कभी भी लोग अपनी कास्ट को डिसओन नहीं कर सकते। कास्ट हमेशा एक पर्सन के साथ रहती है फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ। ठीक है, अब बहुत मैम? इम्पोर्टेंट। हाँ जी, मैम हाँ जी, मैम कास्ट और गोत्र में क्या फर्क होता है? क्या कास्ट और गोत्र में क्या डिफरेंस होता है? कास्ट और गोत्र में क्या डिफरेंस होता है? देखो, अब अगर हम बात करें जो गोत्र होता है, एक कास्ट है ब्रॉड टर्म, ठीक है, कास्ट एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर उसकी एक सब पार्ट हो गया गोत्र। ये एक इंग्लिश वर्ड है, इट इज अ हिंदी वर्ड, ठीक है। अब सपोज मैं अपनी बात करूं तो अब माय कास्ट इज हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदू शर्मा, ठीक है, लेकिन शर्मा में क्या, पंडित कपिल, माय सरनेम इज कपिल, सो वो हो गया मेरा गोत्र, ठीक है। अब इतने सारे, अब अगर हम कह लें कि कास्ट है, कोई पर्सन है, ही और शी इज मुस्लिम, ठीक है, अब मुस्लिम्स में तो बहुत सारे होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, उनके अंदर सब कास्ट होते हैं जो कि उनके सरनेम होते हैं। तो कास्ट एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर अलग अलग गोत्र आते हैं लोगों के, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? ओके मैम। यस, ओके। नाउ एस्क्राइब्ड स्टेटस, किसी ने पहले ये टर्म सुनी है कभी? एस्क्राइब्ड स्टेटस? Yes, ma'am. यस मैम। यस, टेल मी। कौन कौन? That I belong to a कौन बोल रहा है? certain caste. Ma'am, this is Kunjika. Please, first please tell your name. Ma'am, this is Kunjika. Yes, By Kunjika. ascribed status, what we mean is that supposedly somebody is from this particular caste, तो उसकी identification उसी particular caste से हो रही है कि ओ ये इसका status already ascribed है. हाँ, कैसे ascribed है? By birth. मैम Yes, by By the birth accident उसे of मिला birth. हुआ है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यशिका Yes, यशिका। मैम, वो उसे बर्थ से ही मिला हुआ है, हाँ, बर्थ से यानी ही उसे कि मिला, उसके पास चॉइस नहीं है। हाँ, वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे बेस्ड है और इसमें इंडिविजुअल चॉइस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। द न्यू गर्ल, व्हाट्स हर नेम? द वन हु इज जॉइंड टुडे, जिन्होंने आज मैम आई हैव join जॉइंड टुडे। अच्छा, आप हो। ओके, सो आपको समझ आ रहा है ना? एनी कंफ्यूजन, एनी No, डाउट ma'am. टिल नाउ? नो मैम। ओके, गुड। ओके, अब अगर हम बात करें तो एस्क्राइब्ड स्टेटस किस पे बेस्ड होता है? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे बेस्ड होता है और एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही आप क्या बनते हैं? सोसाइटी का मेंबर या इस सोसाइटी के पार्ट बन पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक तो हो गया हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस, इसका ऑपोजिट क्या होता है? ये वैसे आपकी बुक में गिवन नहीं है, मैं बता रही हूँ खुद से, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 टाइप्स के स्टेटस होते हैं जो एक इंडिविजुअल के एग्जिस्ट करते हैं इस सोसाइटी में। एक तो हो गया एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो उसको मिला है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से, कि अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन इस कास्ट का मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर है या इस ट्राइब का मेंबर है और ये इसका स्टेटस है, ये इसका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, ठीक है। दूसरा कौन सा स्टेटस होता है? अब एस्क्राइब्ड स्टेटस को तो आप चेंज Ma'am. नहीं कर सकते। Yes, दूसरा ma'am. स्टेटस, Ma'am, achieved. मैम जिसे हम Yes, चेंज कर very सकते good. हैं, Achieved. क्या? फाइनेंशियल स्टेटस, लाइक हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव अचीव कर किसने सकते हैं। बोला? Ma'am, Kunjika. यस, वेरी गुड कुंजिका। सो दूसरा स्टेटस कौन सा होता है? अचीव। अचीव स्टेटस क्या होता है? मैम जो मैम जो उसने हम earn चेंज कर किया है। सकते हैं कौन कौन अपॉर्चुनिटीज बोल को रहा है गेन पहले ये करके। बताओ। यशिका मैम यस, यशिका। मैम जिसको person हम चेंज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज गेन करके, यस, वेरी गुड। बेटरमेंट ला के। यस, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? मैम फॉर एग्जांपल स्टडी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यस, वेरी गुड। Ma'am, potential acing in one's opportunities. career. कौन बोल रहा है मैम? हाँ, बोलो कुंजिका। मैम अपने करियर से अचीव स्टेटस यस, आएगा. वेरी गुड। यानी कि ऐसा स्टेटस जो एक पर्सन चेंज कर पाए अपने
करियर को चेंज करके, अच्छी पढ़ाई करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, तो उससे क्या होता है, जो ये जो कास्ट डिस्टिंक्शंस होते हैं ना, वो धीरे धीरे ब्लर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ब्लर होने लगते हैं धीरे धीरे, विद टाइम मैटर नहीं करते। एक बार एक पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद कोई नहीं पूछता कि आप कौन सी कास्ट पे हो, कौन सी कास्ट से हो आप, ठीक है, या फिर कास्ट बेसिस पे उसको कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर कोई बहुत, अब कोई लोअर कास्ट का पर्सन है सपोज, ठीक है, उसने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है वो, ठीक है, अब लोअर कास्ट से बिलोंग करने पे उसको बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि अच्छा ये तो लोअर कास्ट का है, नीची जाति का है, ये है वो है, बहुत कुछ उसको कहा, ठीक है, बट ये तो था उसके एस्क्राइब्ड स्टेटस के बेसिस पे जो उसे कहा गया, लेकिन उसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया, मींस ही हैज अचीव्ड अ न्यू स्टेटस। अब वो क्या बन गया, सपोज कोई हाई पोस्ट पे हो, अब वो चला गया है, डीएम बन गया है, या फिर और कोई ऐसी हाई पोजीशन, यहाँ पर डॉक्टर बन गया है, तो ये उसका कौन सा स्टेटस हुआ? अचीव्ड स्टेटस। यस, कौन बोला? यशिका। हाँ, ये हुआ उसका अचीव्ड स्टेटस, ठीक है, जो उसने अचीव किया है ऑन द बेसिस ऑफ हिज हार्ड वर्क, हिज स्किल, हिज एजुकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? अचीव्ड स्टेटस, जो पर्सन विद टाइम चेंज कर सकता है। अब अगर हम बात करें हिरार्कियल सिस्टम क्या होता है, हिरार्कियल सिस्टम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं that it is a ladder like arrangement. एक लैडर है, लैडर क्या होता है? सीढ़ी। यस, वेरी गुड। तो हिरार्कियल सिस्टम जो है कास्ट का, वो एक लैडर लाइक अरेंजमेंट है, जिसमें किसी की तो पोजीशन बिल्कुल लोअर है और किसी की बिल्कुल टॉप पे है। किसके बेसिस पे? उनकी कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब पिछले टाइम में क्या होता था, जो ब्राह्मण्स थे दे अक्वायर्ड द टॉप पोजीशन, व्हाइल जो लोअर कास्ट थे, जैसे कि कौन थे? हाँ, जैसे कि स्वीपिंग का काम करने वाले हो गए, ठीक है, या फिर SC STs जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको लैडर लाइक अरेंजमेंट में सबसे नीचे रखा जाता था, और ब्राह्मण्स अक्वायर्ड द टॉप पोजीशन व्हाइल क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर आते थे। अब आपको ये जो की टर्म है, क्या की टर्म यूज किया मैंने इसके लिए, वो याद रखना है आपको। लैडर लाइक अरेंजमेंट। रिपीट आफ्टर मी। Ladder लाइक अरेंजमेंट में सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती थी, ठीक है। तो ये एक हिरार्कियल सिस्टम था इस तरीके का। शूद्रा, जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था, वो सबसे नीचे आते थे और उनको कैसा काम दिया जाता था? क्लीनिंग का, स्वीपिंग का। उनको माना जाता था अनटचेबल, क्योंकि वो ऐसा काम करते थे क्लीनिंग या स्वीपिंग का। प्लस उनको ये भी माना जाता था कि इनके कोई रिलीजियस बिलीव्स नहीं है, they were not allowed to enter the temples or the village area of the upper caste, या फिर जिन विलेज के जिन एरियाज में अपर कास्ट के घर होते थे या रेजिडेंशियल एरिया होते थे, वहां पे क्या बोल रहे हैं मैम? They lived in slums. Yes, they lived in outer circles या फिर slums में ये रहते थे विलेज के। उसके बाद कौन आते थे? वैश्य आते थे, ठीक है। ये कौन सा काम करते थे? यूजुअली ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड, छोटा मोटा बिजनेस हो गया, उनसे रिलेटेड ये लोग काम करते थे। क्षत्रिय कौन थे? दिस वाज द वॉरियर कास्ट। इसको क्या बोलते हैं? वॉरियर कास्ट। इसमें ज्यादातर वॉरियर्स आते थे, ठीक है। और जो ब्राह्मण्स होते थे, ये होते थे प्रीस्ट या फिर रिचुअल जो वर्क में ज्यादा इंटल्ज होते थे, वो किस में आते थे? ब्राह्मण्स के कास्ट में। और एंड दे अकॉर्डेड दी टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन किनको दी गई थी? ब्राह्मण्स को। तो ये क्या था? हिरार्कियल डिवीजन था, या हिरार्कियल सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। जब भी अगर ये बाय चांस ये क्वेश्चन आता है पेपर में लॉन्ग मार्क्स में, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये इजी सा डायग्राम बना दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसे ट्राइंगल बनाना है, डंडे मारने, और ये डिवीजन को लिख देना है। ब्राह्मण्स टॉप पे, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड नीचे शूद्र या
अनटचेबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट और मैरिज कैसे रिलेटेड है, आपको क्या लगता है? Intercaste marriages को dishonor किया जाता है. कलेक्टिवली। Excuse me, ma'am. हु स्पीकिंग? Chandrashri. चंद्रश्री। Ma'am, hierarchical system is similarly like Varna. सॉरी? Is hierarchical system is similarly like Varna. Yes, 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 it is. और कुछ Okay, पूछना है? ma'am. मैम No, इज ma'am. इट जस्ट सिमिलर और इट इज वन? बिकॉज No, no, उसमें no, 4 वर्णास थे. तो सी कास्ट सिस्टम, अब ये जो हिरार्कियल सिस्टम है, हमने क्या पढ़ा कि वर्ण जो था ये पहले टाइम में वर्ड यूज होता था, ठीक है, लेकिन न्यू टर्म क्या आ गई? कास्ट आ गई, और कास्ट के आने पे एक और न्यू टर्म आ गई, ये हिरार्कियल डिवीजन। सो इट इज क्वाइट सिमिलर। वो पहले उस तरीके से बोलते थे, अब ये न्यू कॉन्सेप्ट आया है, ये हिरार्कियल सिस्टम वाला। ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, like there are some this? people who are born. Ma'am, this is Lavanya. लावण्य, हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। Ma'am, like there are some people who are born in good family and they have a good ascribed status. हाँ, But later on in life lose their status because of some reason. तो वो कौन सी category में आएगा? अगर किसी का बहुत अच्छा स्टेटस है थ्रू मतलब उसने एस्क्राइब किया है अपनी फैमिली से, बट अपने हार्डवर्क की वजह से वो उस स्टेटस को लूज कर दे, यही कह रहे हो ना? Yes, ma'am. सॉरी, हार्डवर्क ना करने की वजह से अपने स्टेटस को लूज कर दे, तो ऑब्वियसली अगर आप देखो, अगर आप किसी पर्सन का एस्क्राइब स्टेटस है और वो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, अब है रहेगा तो वो एस्क्राइब ही ना, अचीव तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो उसको अपने पेरेंट्स से मिला है। तो अब तो ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो अपने बच्चों को या अपना स्टेटस उसको मेंटेन कैसे करे। ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग तो उसके साथ नहीं रहने वाला उसका स्टेटस। अगर उससे बाय चांस उसने हार्डवर्क ना किया, ठीक है, उसका वो जो एस्क्राइब स्टेटस था, जो उसको अपने फादर से मिला, इतनी प्रॉपर्टी उसको मिली, वो सब चली गई, तो कल को उसके पास उसका वो स्टेटस नहीं रहेगा। दैट विल बी नो मोर एस्क्राइब, क्योंकि उसने जो सब कुछ था वो हार्डवर्क किया नहीं, कुछ नहीं किया, सब खो दिया ना उसने। फिर वो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देगा? उसका अपना खुद का स्टेटस भी तो उसको बिल्ड करना पड़ेगा ना कुछ सोसाइटी में। Ascribed status is just what you get from your family, and then maintenance of that status is up to you. Okay. Okay, ma'am. Is there any confusion? Shall we move forward? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. next is endogamous marriage. Endogamous marriage किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। Marriages which happen within the own caste. Sorry. हाँ, yes. So Ma'am? endogamous marriage within your caste but outside your गोत्र। ठीक है, कास्ट डोमेन्स के अंदर मैरिज करना, बट आपकी किस में नहीं होनी चाहिए? वो गोत्र में नहीं होनी चाहिए। गोत्र में जैसे अभी मैंने समझाया था, गोत्र सिस्टम क्या होता है? Similar to hierarchical system. No, what is your गोत्र? Surname. रीजॉइन करना, अब बोल दो। 5 मिनट्स के बाद आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो सेम लिंक पे रीजॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। मैम ये नोट्स कॉपी करने हैं? नहीं, ये तो आपको मिलेंगे ना, ये तो आपको मिल Okay, ma'am. जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। यू डोंट नीड टू कॉपी देम, ये आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है? ओके अब मैम। गोत्र क्या होता है हमारा? जैसे मैंने बताया था, सबका The part of Surname? caste. हम्म, Surname के जो नीचे सब पार्ट होता है उसे गोत्र कहते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो आपके जो गोत्र है उसमें मैरिज अलाउड नहीं होती। यू कैन मैरी विद इन योर कास्ट, ठीक है। सपोज अ हिंदू कैन मैरी अ हिंदू पर्सन। अब तो मॉडर्न टाइम में इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, बट अगर हम पिछले टाइम की बात करें तो कास्ट सिस्टम जब रिजिड हुआ करता था उस टाइम पे, आपको भी पता होगा, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी इंटरकास्ट मैरिजेस इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होती थी, ठीक है। अब उस टाइम पे मैरिजेस कैसे होती थी कि अगर सपोज कोई पर्सन इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, भी उसी पर्टिकुलर कास्ट का होना था, लेकिन गोत्र से नहीं हो सकता था, ठीक है।
देयर आर ऑनर किलिंग्स. अब अगर कोई पर्सन आउटसाइड दी कास्ट मैरिज कर भी लेता था, अपनी कास्ट डोमेन के बाहर मैरिज कर भी लेता था, तो क्या कर दी जाती थी? ऑनर किलिंग. पेनल्टी और पनिशमेंट गिवन स्पेशली टू अ वुमन. व्हाट? ऑनर किलिंग? नहीं मतलब उसे डिसऑनर करते थे या फिर Honor was taken away by the Not society. honor, it's honor. Honor मतलब अपनी इज्जत के लिए किसी को मार देना. वही. तो फैमिलीज क्या करती थी? Also varies from religion to religion. Who's speaking? Ma'am Chandrashri. हाँ बोलो. Ma'am, this also varies from religion to religion. Like in Hinduism, it's a punishable and dishonored practice. But in so basically ये जो ऑनर किलिंग है like जरूरी नहीं normal. है हर जगह हो. अब कुछ फैमिलीज काफी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है, स्पेशली अब या पहले भी होती थी. वहां क्या होता था? ऑनर किलिंग अब हर जगह तो प्रेवलेंट नहीं है. अब ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा किन एरियाज में देखी जाती है? जैसे पंजाब या हरियाणा साइड हो गए, वहां पे उन लोगों को बहुत होता है कि अगर हमारी कास्ट सबसे ज्यादा ऊंची है, हमारे बच्चे को हमारी कास्ट में शादी करनी चाहिए. अब तो कास्ट डिस्टिंक्शंस बहुत ज्यादा ब्लर हो चुकी है. मैं कहती हूँ कि आज के टाइम में आप बताओ, क्या आपको लगता है कास्ट सिस्टम उतना रिजिड रहा है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है अब तो कास्ट सिस्टम. अब आप Yes, एक ही ma'am. क्लासरूम में सब पढ़ते हो, तो क्या आप सबसे पहले आके एक दूसरे की कास्ट पूछते हो? नहीं ना. नाउ नो वन मैटर्स हु बिलोंग्स टू विच कास्ट. ये सब ओल्डर टाइम्स में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, बहुत ज्यादा जब रिजिड हुआ करता था कास्ट सिस्टम. अब जो कास्ट के नोशंस है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, और कास्ट आज के टाइम में मोस्टली इररेलेवेंट ही बन चुका है, कह सकते हैं ना हम. Yes, ma'am. हाँ, बट ये है कि कुछ एरियाज में जब अब जैसे आप विलेजेस में चले जाओ, तो वहाँ के लोग अब भी अपने कास्ट से बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि अच्छा मैं तो इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और यस आई एम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कास्ट. तो हम कह सकते हैं रीजन टू रीजन चेंजेस आए हैं. अब कास्ट के नेम पे एक जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट प्रैक्टिस है, वो क्या है? कम्युनलिज्म की. व्हाट इज कम्युनलिज्म? ये आपके पॉलिटिकल That the religion is the वन बाय वन. superior. मैम कौन कौन बोल रहा है जरा बताना. पहले युक्ति बोलो. people believe that their castes are the only legalized or like they do not respect other ओनली लेजिटिमेट कास्ट. जब ये लोग मानने लगे कि हमारी कास्ट सबसे ज्यादा लेजिटिमेट है, सबसे सही हम ही हैं. और कौन बोल रहा था मैम? यशिका बोलो. Supremacy. हाँ, सुप्रीमेसी आ जाना अपने कास्ट को लेके. वेरी गुड. और कौन बोल रहा था मैम? Ma'am, they disregard other castes. हु स्पीकिंग? Kunjika. हाँ जी बेटा बोलो. Ma'am, they disregard other castes. हाँ, जब अपनी कास्ट को लेके इतना ज्यादा प्राउड हो जाना कि आप दूसरे की कास्ट की वैल्यूज की रिस्पेक्ट ही ना करो, तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म रिफर्स टू अग्रेसिव शोविनिज्म. अब ये टर्म एज इट इज चाहे तो याद कर लेना, चाहे रट लेना, ठीक है? अग्रेसिव शोविनिज्म इसको कहते हैं. इट इज एन आइडियोलॉजी. अब कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें लोग क्या मानते हैं कि मेरा रिलीजन, मेरी कास्ट ही सबसे बेस्ट है, सबसे लेजिटिमेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट? मींस सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा करेक्ट मेरी ही कास्ट है, और जो बाकी रिलीजन्स हैं या बाकी अदर कास्ट है उनको क्या माना जाता है? इलेजिटिमेट, मतलब गलत. ठीक है? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? No, ma'am. ऑल क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो वी आर एंडिंग टुडेज सेशन ओवर हियर. और कल हम कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे? कल से हम स्टार्ट करेंगे प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट. तो जैसे आप रेगुलर क्लास में मार्क करते हो तो मार्क कर लो, और कल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. नोट्स में हाँ मार्क कर. जब न्यू स्टूडेंट्स आ जाएंगे उनको भी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है? टिल देन जो भी आप लोग जैसे मार्क करते थे अपने रेगुलर क्लासेस में, वैसे मार्क कर लो, ताकि हम कल
पॉल्यूशन और प्योरिटी से स्टार्ट कर पाए। ओके, सो एक सेपरेट ग्रुप बनने वाला है जिसमें लर्न करो में गर्ल्स होंगी, उसमें मैं भी एडिट होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा हमारा, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, बाय।